Now we are starting sustainable engineering part. Okay, others are coming or what? Okay, now before moving further, just we are recalling what we did in the last class till now as far as our second unit is concerned. We just completed what is sustainability, need and concept of sustainability, social, environment and economical sustainability. This part we completed in the last lecture. Fine. Today we will try to complete sustainable development as well as the nexus between the technology and sustainable development. Means how technology helps in sustainability. Fine. And challenges for sustainable development will cover itself in a sustainable development. Fine. So what we mean by sustainable development? That is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Grow Hallam, not visible. Oh, wait. I need to share a screen. Thanks for informing. Now it is visible, beta. Now is it visible? Yes, ma'am. Yeah. Yes. So I need to repeat once again. Now see, let's see. As far as this unit is concerned, till now we completed need and concept and जो three pillars हैं हमारे sustainability के like social, environmental and economic that we completed. Today we are like starting from sustainable development and will complete the technology and sustainable development nexus and more or less challenges of sustainable development भी. So next week जहाँ तक रहेगा ये यूनिट विल ट्राई टू फिनिश. राइट. कोई भी डाउट रहे तो तुम लोग पूछो. Silence has two meaning. Either you are understanding each thing and you have no doubt, and second thing is you just log in and just did mute and you are just making yourself presence. Fine. But really this sustainable engineering is a very good topic as the current scenario is going on. So I think you should pay attention. And as far as VLSI is concerned, that is also from research point of view, it is a very good topic. Fine. Now comes sustainable development. ये वाली लाइन हर जगह जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, नीड की करते हैं, दिस कम्स अक्रॉस. दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट दैट नीड्स of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Gro Hallam Brundtland first introduced the concept of sustainable development in 1987. He was then Prime Minister of Norway and Chairman of World Commission on Environmental Development. Means 1987 में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. इसका इन्वर्जन कहाँ से हुआ? दैट from the Prime Minister of Norway and Chairman of the World Commission on Environment and Development. His name is Gro Harlem Brundtland. ये लिख लो भाई, that is important. Then we'll move further. और इसके बारे में डिटेल अपन अभी पढ़ेंगे. बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि जो भी मेरे पास प्रेजेंट में असेट्स हैं उसको इस तरह से रिन्यूएबल वे में मैं इस तरह से यूज़ करूं कि फ्यूचर जनरेशन तक उसकी यूटिलिटी हो सके. फाइन.
ये लिख लो बस, हाँ ईयर लिख लो, किसने डेवलप किया था बस, ठीक है. What are the challenges? That is also one on the important thing. Like challenges for sustainable development. I will not tell you कि write whole sentence, but जो भी main points है अगर तुम वो लिखते हो तो it's good. Like हम पहले तो बात करेंगे sustainable development की, but before that I want to just let you know regarding the challenges so that you will come to know कि what are the issues that come across. ठीक है. So first thing is a lack of financial resources to carry out and plan sustainable development. ये हमारे यहाँ सबसे प्राइम कहना चाहिए इशू रहता है. मतलब अपन बाहर के दूसरी कंट्रीज के बारे में बोले ना बोले, लेकिन हाँ सम और अदर वेयर दे ऑल्सो हैव द फाइनेंशियल इशूज. सो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इज टू कैरी आउट एंड प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब चैलेंजेस का यही है कि ईच कंट्री या हर स्टेट की भी हम बात करें, सब चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बट सबसे प्रियोर चीज़ क्या रहती है उसमें, जो चैलेंज हमारे सामने आता है, पैसा, मनी. सो राइट डाउन दिस, द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट एंड प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज फाइनली वॉट एवर प्लानिंग एंड मेंटल एक्सरसाइज वी डू, finally to implement that we need money. So that should be there, and some or another where so many employees are there which are related to sustainable development, but due to lack of finance and all, that is a big issue in that. Second thing, sustainable development is often not possible in war torn countries as there are other priorities on the hand. Fine. कुछ कंट्रीज जैसे वॉर टॉर्न वाली है, जैसे अभी चाइना यूएस के जो हाल हो रहे हैं, इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है. फाइन. नेचुरल अकरेंस लाइक अर्थक्वेक, सुनामी कैन पोज अ थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी as they can shift the flow of water and destroy certain elements of infrastructure. पूरा नहीं भी लिखना चाहो तो ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो. फर्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, second not possible in war-torn country, third is a natural occurrence like earthquake and tsunami make the growth of or it can pose a threat to sustainability. लिख लिया? लिख लो, मैं टाइम दे रही हूँ. अभी तो आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को? अगर ऐसा कुछ इशू रहे तो बोल दिया करो एक्चुअली, है ना. हो गया? You completed now these 3 points? ना लिख लिया कि नहीं लिखा? ठीक है. दो और पॉइंट आते हैं. वन इज अ गवर्नमेंटल conflict between the immediate profit and investment towards a sustainable technology, and the foremost and the main point is corruption. Many a time it happens that NGOs and government have funded for sustainable development, but वो पैसा in between ही कहीं रह जाता है और जहाँ उसको लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है. The next is a lack of efforts at a municipal level. These are also the things. So one, write down corruption. म्यूनसिपल लेवल के जो एफर्ट्स हैं वो कम रहते हैं, और कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमीडिएट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो द मेन इशू. ये 6 पॉइंट्स तो मैंने तुम्हें ऐसे बता दिए हैं.
तो अगर तुम्हें आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ वी कैन गेट रीड, तो इन 6 पॉइंट्स को ये एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी चीज़ को मैं एम्फोसिस करती हूँ लिखो, मीन्स सम और अनदर वेयर एज पर योर एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये जो 6 पॉइंट है इनको तुम्हें एलेबरेट वे में लिखना रहेगा. ये तो मैंने की पॉइंट्स बता दी और आई एक्सप्लेन्ड यू, फाइन. सो यू नीड टू मेक इट बिट एलेबरेटिव. और इन 6 चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू मेक द अंडरस्टैंड, फाइन. कंप्लीटेड, लिख लो. मैडम कुछ कर रहे हैं क्या? लेक्चर चल रहा है. क्लास चल रहा है. ठीक है बेटा, आप लोगों ने लिख लिया, कंप्लीटेड. जल्दी बोलो बेटा. ये 3 पॉइंट्स लिख लिए तुम लोगों ने. लेक ऑफ एफर्ट एट अ म्युनिसिपल लेवल, करप्शन. ओके, शुड वी मूव अहेड बेटा? ठीक है. वाई इट इज नॉट क्लियर? इको जैसा साउंड आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो, अभी क्लियर आ रही है आवाज? वॉइस इज ऑडिबल बेटा? यस मैम. माइट भी जैसे एक आध किसी को नहीं आती है, कुछ नेटवर्क इशू भी रहते हैं कई बार, है ना, वो देख लेना. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग इन अ बिट एलेबोरेटिव वे, लाइक व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड कंसेप्ट एंड ऑल. फाइन. सो अगेन ये चीज अभी मैंने तुम्हें बताया 1987, तो ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट केम टू प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, दैट इज WCS. 1980s में इसका नाम हमें सुनाई दिया. और फाइनली जैसे अपन ने बताया कि इट अचीव्ड अ न्यू स्टेटस विद द पब्लिकेशन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स बाय ब्रुकलिन नॉर्थ एंड साउथ, अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन क्राइसिस इन 1985. ठीक है. 1983 में our future, common future, and has gained even greater attention since the United Nations Conference on the Environment and Development held Rio Janeiro in June 1992. ये तुम लिख लो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट. जो भी एक्ट पास होते हैं, जैसे इन द सेम यूनिट we will understand in the next week Water Act, Air Act, that all used to get approval from UNCED. Fine. So what is the full form of UNCED? I will suggest you to write down, that is United Nations Conference on Environment and Development. ठीक है. एंड what we mean by development? सस्टेनेबिलिटी तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी मीन्स लाइक इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर द थिंग्स टू रिमेन in existence in future and present also without damaging its future aspects. What is development? Generally development क्या होता है? हमारी gradual growth होती है of a situation that becomes more advanced and strong than previous one. Development is indeed intended to bring a positive change for human being and its surroundings. Development may take place by bringing about a change in policy, projects and legislation. ठीक है. और डेवलपमेंट को हम किस तरह से ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट मैं चाहूंगी कि तुम लोग लिख लो.
कि it is intended to bring a positive change for human being and its surrounding, and it may take place by bringing out a change in policy, project and legislation. This definition for any kind of development is justified. Fine. Another way we can write down, it is unfolding of human potential for meaningful participation in economic, social, political and cultural process and institution so that the people can improve their condition. ये दोनों points अच्छे हैं. अच्छा, मतलब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम लिखते हो अगर आता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक तरह से हम कुछ भी चेंज पॉलिसी या प्रोजेक्ट किसी भी चीज में कर रहे हैं. डेवलपमेंट कुड बी योर सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो, डेवलपमेंट कुड बी इन योर होम सराउंडिंग ऑल्सो. सो वो क्या होगा, एक तुम्हारा पॉजिटिव चेंज होगा फॉर ह्यूमन बींग एंड इट्स सराउंडिंग, एंड इट इज ऑलवेज असर्टिव, अ पॉजिटिव. ठीक है. और अपन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो इट इज़ अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोसेस. ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन. लिख लो तो मुझे बताओ बेटा, है ना. तुम्हें लगता होगा सम स्टूडेंट रियली इरिटेट. मेरी तो क्लास जब फाइनल ईयर में होती थी तब भी वो होते थे, बट कुछ लिखने से मेरा मीनिंग यही रहता है जैसे तुम लोग अपना टाइम निकाल के और यू आर पेइंग अटेंशन फॉर द लेक्चर. सो माय मोटिव इज एटलीस्ट यू राइट समथिंग सो दैट यू कंसीडर योर सेल्फ वर्थ वाइल इन 2 hours, कि मैंने जो भी लेक्चर था उसमें एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता रहे मैंने ये पढ़ा था. और कई बार तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर का मैं केस बता रही हूँ, मैक्सिमम टाइम काफ़ी बच्चे तो आते थे, नहीं आते थे. जो बच्चे आते थे मेनी अ टाइम आई यूज टू फाइंड कि मेरे मिड टर्म के पेपर में भी जो चीज़ मैंने क्लास में पढ़ाई एज इट इज़ वैसी की वैसी, उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा भी. मतलब तुम लोगों को लाइफ में पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि पढ़ लें हम किताब खोल के भी. तो कुछ मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते थे, वो डिक्टो वही की वही लिखते थे जितना मैं उनको क्लास में लिखा रही हूँ. तो एटलीस्ट मुझे ये रहता था इतना भी मैं नहीं लिखा थी तो उनको उतना भी लिखना नहीं आता. इसलिए मेरा थोड़ा एम्फेसिस रहता है कि राइट डाउन, मेक योर राइटिंग हैबिट्स, इट इज़ गुड. एंड एज यू गो ग्रोज अप एंड ग्रू अप आफ्टर डिग्री ऑल्सो फॉर मास्टर यू गो और फॉर रिसर्च, PhD, वॉट एवर, राइटिंग हैबिट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, चलो हो गया. डेवलपमेंट का ये लिख लिया क्या बेटा? ओके. तो अभी अपन ने क्या बात करी यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि इन्वर्जन जो हुआ था फाइनल तो वही हुआ था जो मैंने इस स्लाइड में तुम्हें बताया है. इसका जो एग्जिस्टेंस है वो फाइनल, इसको जो एक मोहर अपने यहाँ तो 1990 उस ईयर में, इंडिया में तो तब एग्जिस्टेंस में आया था, बट जो इसका फाइनल इसको एक छाप लगना नहीं कहते, वो 1987 में नॉर्वे में ही लगी थी. ठीक है, बाय इट्स PM. बट इसका जो कहना चाहिए फर्स्ट एग्जिस्टेंस जो था वो WCS ने 1980s में किया. फिर इसमें कुछ कुछ पब्लिकेशन रिपोर्ट्स आती गई 1985 में, फाइनली 87 में इसे नॉर्वे ने वो कर दी. फाइन. हमारे यहाँ जो है ये यूनिसेट के नाम से है, एंड ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 1992. डेवलपमेंट क्या है अपन को क्लियर हो गया. नाउ कम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So that is again the same thing which I told you, that meets the needs of the present without compromising the ability of future. ये लाइन तो मुझे लगता है तुम्हें रट चुकी होगी, क्योंकि every now and then whenever we talk about sustainable, this is the thing. मतलब डेवलपमेंट का मीनिंग ये है चीज़ें हमें सस्टेन वे में यूज़ भी करनी है, बट फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को सेक्रीफाइस किए बिना. ठीक है. Now comes this graph. See, improvement of lifestyle and well-being.
Here in this side is preserving natural resources and ecosystem, and in between is my sustainable development. Means हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उनको भी कंसीडर करना है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड वेल बीइंग, ये इसका भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो दैट ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या ऐसे अपने ध्यान रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अगर मैं एज ए ह्यूमन यहाँ पर हूँ तो मुझे मेरे नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना है, एंड माई लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो शुड बी इम्प्रूव. इवोल्यूशन ऑफ एसडी कंसेप्ट रियाओ टू जॉन्सबर्ग, ये इसका पूरा वापस से वंस अगेन उन्होंने पूरा बताया है कि लैंडमार्क इवेंट इवोल्यूशन कंसेप्ट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ. WCED मीन्स वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उसको रिपोर्ट दी अपन ने. फिर 1992 में यूनिसेड और रियाओ अर्थ समिट एज इट इज कॉमनली रिफर्ड to many activity between successive landmark event sought to build on the outcome of a previous event to clarify issue and provide inputs to the preparatory process of the following events. ये इन्वर्जन कहाँ से हुआ, इसमें प्रोसेसेस क्या क्या हुई वो बताया है इसमें. लाइक कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिसंबर 1992 में इंश्योर हुआ. उसके बाद पर्टिकुलरली 1997 में फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एज वेल एज वर्क प्रोग्राम ऑफ CSD फॉर 1997-2002 पुट ऑन किया. कीटो प्रोटोकॉल adopted in December. This conference of the party like COPs held over the years. इसमें मैं ये चाहूँगी कि इवोल्यूशन ऑफ SD करके तुम लिखो, नॉट दिस होल सेंटेंस यू राइट डाउन, बट एटलीस्ट ईयर और उस टाइम क्या चीज़ हुई है. सो इन 1972 व्हाट हैपेंस, यूनाइटेड नेशन conveyed and submitted the report to the WCED. WCED क्या होता है, ये फुल फॉर्म भी कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएंगे. दैट इज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को ये उन्होंने किया. ठीक है. सेकेंड 1992 में यूनिसेड जो है अवर कॉमन फ्यूचर एंड 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ये डेवलप हुई, और इसमें उन्होंने क्या किया, क्लैरिफाई द इश्यूज एंड टू प्रोवाइड इनपुट्स इनटू द प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग. तो ईयर लिख लो, और जैसे यहाँ WCED करके लिख देना कि इसको पूरी रिपोर्ट सबमिट करी. इन 1992 यूनिसेड ने क्या किया, क्लैरिफाई द इश्यूज एंड प्रोवाइड इनपुट्स. लिखो ये 2 मिनट दे रही हूँ मैं, उससे एटलीस्ट तुम्हें पता रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीज ने क्या क्या किया, उसके बाद हमारे तक इंडिया तक कैसे पहुंचे या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो इसकी स्टेपिंग है. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट भी लिख लोगे, समटाइम इट कुड बी यूज.
Have you completed? Yes, ma'am. नाउ इन 99 यहाँ पर 1992 में ही कमीशन ऑन CSD, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिसंबर 92 में क्या किया इन्होंने, इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ इसके लिए मॉनिटर एंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन. यू जस्ट राइट डाउन. यहाँ पर 1992 है, लास्ट एंड ऑफ 90 दिसंबर 92 में क्या हुआ, UN established CSD to ensure effective follow-up of UNCED. इतना लिख लो बस, ठीक है. एंड UNCED तो अपन पहले ही लिख चुके हैं. फुल फॉर्म CSD क्या होता है, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब उसके परफेक्ट एक रूल्स रेगुलेशंस बन गए और जो उनको फॉलो अप नहीं करेगा उसको क्या पनिशमेंट है ये भी डिसाइड होगा. फिर अगेन व्हाट यू विल राइट डाउन इन फॉर 1997 to 2002 स्पेशल सेशन फॉर जनरल असेंबली. ये ना लिखे, जस्ट ये लिखोगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एज वेल एज द वर्क प्रोग्राम ऑफ CSD फॉर 97 से 2002 डेवलप हुआ. ठीक है, ये नहीं भी लिखो तो चल जाएगा. मेन तो तुम्हें ये लिखना है दिसंबर 1992 में CSD इस्टेब्लिश हुआ UN के थ्रू, जस्ट फॉर फॉलो अप, इफेक्टिव फॉलो अप देखने के लिए UNCED. फिर 97 दिसंबर में कीटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट की गई एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी इज COP held over the year have met some advance relating to clarify the various aspects of financing and implementing this. This is all about your sustainable development कि लाइक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पे आई रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और किस तरह से फॉलो अप लिया. तो ये ईयर्स, ये नेम्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो एक तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ये नहीं भी लिखो तो ये तो लिखो कीटो प्रोटोकॉल अडेप्टेड COP इन दिसंबर दिस काय के लिए, टू क्लैरिफाई द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल. फटाफट लिखो अब, है ना, टाइम हो रहा है. Now, what is aim of sustainable development? Maximize the probability of achieving sustainable development और minimize the chances of environmental degradation. ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें कहा लिखो, या इस प्रोसेस का मेरा मेन पर्पज यही था कि टाइम टू टाइम फ्रॉम 1972 to till 2002 what happened at the government level, internationally government level, to adapt this sustainable development. Fine. और इसका पर्पस मेन यही है कि हम इसके प्रोबेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको मिनिमाइज करें. वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास और से नेक्स्ट वीक यू विल कम टू नो द पर्टिकुलर इश्यूज लाइक वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सब तुम्हारे UNCED के अंदर ही बने हैं. तो 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, दैट इज अ क्लाइमेट चेंज. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, राइट डाउन दिस 4 मेन कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो 4 किन चीज़ों पे ध्यान देना है. फर्स्ट इज अ क्लाइमेट चेंज, सेकेंड इज न्यूट्रिएंट साइकिल, थर्ड इज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड द फोर्थ इज अ बायोडाइवर्सिटी. ये चैलेंज भी अपन कह सकते हैं या अपन कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जैसे अपन अर्थक्वेक या जो भी चीज़ें नहीं कहते हैं, सुनामी वगैरह है. न्यूट्रिएंट साइकिल्स, हाइड्रोलिक साइकिल जो बायोडाइवर्सिटी है, ये सभी कहीं ना कहीं इसके मेन कंपोनेंट है. लिख लिए क्या ये नाम?
Clear? Now development of sustainable. एग्जाम्पल जो थोड़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सोलार एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इनको हम डिटेल में आगे 4th यूनिट में दोबारा पढ़ेंगे, बट इन अ शॉर्ट, इसीलिए मैं आई एम नॉट टेलिंग टू राइट डाउन, बट यस एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल में तुम नाम जरूर लिख लो. लाइक सोलार एनर्जी क्या है, पर्टिकुलरली जो मेन एडवांटेज सोलार एनर्जी का है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री एंड अवेलेबल इन लिमिटलेस सप्लाई. मतलब एक तो फ्री है, दूसरा लिमिटलेस सप्लाई, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है. Both of these factors provide huge benefits to the consumers and help reduce pollution. Replacing non-renewable energy with the type of energy is both environmentally and financially. ठीक है, तो सोलार एनर्जी हमारा सबसे बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, जो फ्री भी है और लिमिटलेस है. वाइंड एनर्जी इज अनदर रीडेबली अवेलेबल, एंड दिस पर्टिकुलर इज हार्सिंग इज द पावर. Harnessing is a power of wind energy. Necessities the use of windmills. ठीक है, वाइंड मिल्स जो चलती हैं वो वाइंड एनर्जी से ही हमारी चलती है, और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें. ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड फाइंडिंग सुटेबल. ठीक है, क्रॉप रोटेशन इज अनदर थिंग. तो वन इज अ सोलार एनर्जी, अनदर इज अ वाइंड एनर्जी. Third is what? Construction cost, finding suitable location, kind of. ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? आई हैव अ लाइक फील्ड, कभी उसमें क्रॉप रोटेशन मीन्स एक ही चीज़ को बार बार ना वो करके हम उस पर डिफरेंट वे में फार्मिंग करें, तो उससे भी पर्टिकुलरली ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है. इफिशिएंट वाटर फिक्सर. So see, first example is solar energy, another is a wind energy, third is a crop rotation, fourth is a efficient water fixtures. So EPA, according to EPA क्या है? It takes a lot of energy to produce and transport water and to process waste water. ठीक है, so इसमें यही है कि हम पानी को फ्रेश वाटर हुआ या हमारा डर्टी वाटर भी, उसको कैसे रीयूज़ करें या उसको किस तरह से यूजफुल वे में मूव ऑन करें. ग्रीन स्पेस अकॉर्डिंग टू द UW मेडिसन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन स्पेस. ठीक है, दीज आर द थिंग, बट मेन इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, दैट इज सोलार एंड वाइंड एनर्जी, एंड क्रॉप रोटेशन इज सम और अनदर वे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ कम्स पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ से अपन अब ये करने के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक के बाद अपन अब नेक्स्ट वीक करेंगे. ठीक है, एज फार एज पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न, एज वी डिस्कस, दैट इज द सेम थिंग लाइक सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. दिस थ्री आर सपोज टू कॉल पिलर्स और मेन कहना चाहिए सोर्सेज ऑफ अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये जो डायग्राम है ये यूनाइटेड नेशन 2005 वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट है. ये जो है मूव ऑन तो काफ़ी टाइम से हुआ, बट ये जो वेन डायग्राम है ये जस्टिफाई कब हुआ? 2005 में यूनाइटेड नेशन ने इसको सबमिट किया कि अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाह रहा हूँ फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी स्टेट, फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट एरिया, से सपोज भीलवाड़ा, so my all these three things are correlate. First of all, my environmental protection. When my environment is protected along with the social development, then only my economic development is possible. No need to, ये तो मैंने अपन ने पहले ही कर लिया. बट यस ऑफ कोर्स पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तुम ये 3 पॉइंट लिख सकते हो. ठीक है, एक फोर्थ पिलर भी कहा जाता है विच इज नॉट वेरी मच इन लाइक वोग और इन एग्जिस्टेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी. दैट इज अ नेसेसरी फॉर ह्यूमन काइंड
एज अ बायोडाइवर्सिटी इज फॉर नेचर। मतलब इसको हम कई बार बाईपास कर रहे हैं, बट सम और अनदर वेयर कल्चरल डाइवर्सिटी भी ज़रूरी भी है, और ह्यूमन काइंड के लिए एज अ डाइवर्सिटी इज फॉर नेचर। Sustainable development cannot be understood simple in terms of economic growth, but also as a means to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चैलेंज भी है और पिलर भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब तक भी पॉसिबल नहीं होगा जब तक कल्चरल डाइवर्सिटी है। मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी में हम कैसे बैलेंस बना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ है। जैसे ये होल मेरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, ये सोशल डेवलपमेंट है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी से मेरी इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है और सारी चीज़ें होती हैं। इसका भले ही स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्लाइड वी विल डू इन अ नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और शुड वी कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस टॉपिक? बोलो। नेक्स्ट क्लास में करें या कंटिन्यू करें अभी? ठीक है, तो ये डायग्राम तो बना लो। जैसे अपन ने 3 चीजों के बारे में ही डिस्कस किया था, बट फोर्थ जो हमारा हिडन पिलर है एज फॉर एज सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसका एग्जिस्टेंस कहाँ आ रहा है वो इस वेन डायग्राम से तुम बना लो, ठीक है? देन आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। बना लिया क्या डायग्राम? जल्दी बनो। ठीक है, चलो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़े चैलेंजेस और ये भी हैं। आंचल, अंकित, अश्विनी, भावना, भावना आर यू देयर? या दिशा, जिनिशा, खुशहाल अमेटा, केसर, कृष्ण गोपाल बघेला, कृष्ण गोपाल आर यू देयर? नहीं है। कुणाल माथुर, मनदीप, नीरज, नीरज, नेहा, पायल, प्रणव। ओके ओके, तुम अटेंडेंस दो तो इस तरह से बोल दिया करो, नेहा प्रेजेंट मैम, कुणाल प्रेजेंट मैम, ऐसे करके, ठीक है? और किसी की वॉइस अगर ऑडिबल नहीं है तो वो टेक्स्ट कर दे। फाइन। प्रवीण गहलोत, शिवांगी, सिद्धार्थ, तन्मय, शिवांगी प्रेजेंट, या वैभव मंगल, वंदना, मोहित। ओके, हाँ कृष्ण गोपाल आ गए? तुम अटेंडेंस देने आ गए वापस? कहाँ गए थे? या आई एम टॉकिंग टू यू। चलो अभी ज्यादा ऐसा तो नहीं हो रहा है, 1-2 मिनट अपन डिस्कशन करेंगे। डोंट लीव द मीटिंग, डोंट लीव द मीटिंग, जस्ट 2 मिनट डिस्कस करेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है अपना सिलेबस? समझ में तो आ रहा है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। ठीक है, स्पीड ठीक है या और इससे स्लो तो अपन नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। कुछ टॉपिक जैसे मैं तो फिर भी बहुत इलेबोरेट करके और सर्च करके आई एम एक्सप्लेनिंग यू।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको, जैसे अब मैंने चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया, उनको एलोबरेट तो लाइक आई एक्सप्लेन यू कैन डू। इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे अपन को आज ये पता चला कि सस्टेनेबिलिटी में अपन 3 पिलर्स ही मानते हैं, नाउ कैम 4th सोर्स। तो इसके बारे में जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, दैट यू कैन गेट इजीली डेटा एनीवेयर, तो वो तुम देख लेना। ठीक है, हैव अ नाइस डे, विल मीट नेक्स्ट वीक, ओके या।